Hello students, welcome back. Yesterday we have studied up to here, up to fourth part. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. We have solved question number 1 and 2 and you know what was the answer. It is fourth, now come to fifth part, or you can say fifth problem of this exercise. Fifth problem is a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. Look at here. If 2 is added to both numerator and denominator, we don't know numerator and denominator. What is the numerator and what is the denominator? So if you don't know, you will assume let the numerator is equal to x and the denominator is equal to y. Therefore fraction, you know fraction is numerator upon denominator. Suppose 7 upon 9 or 11 upon 15, 16, these are new fraction, means numerator upon denominator, x upon y. According to question, what does it say? If 2 is added means plus. In which? Numerator and denominator. It is a numerator adding to denominator adding to. If you add 2 to both numerator and denominator, it becomes 9 upon 11. अगर आपने न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन बन रहा है आपका 9 अपॉन 11. क्रॉस मल्टीप्लाई 11 multiply x plus 2 and 9 multiply y plus 2. 11 into x, 11x, 11 2s are 22 is equal to 9 into y, 9 by 9 2s are 18. 11x इसको इधर ले जाओ, साइड चेंज, माइनस माइनस 11x minus 9 by 22 minus 18 minus 4, greater number sign. Equation number 1. Come to the second part. From here it is second part. If 3 is added to both numerator and denominator. अब आपने यहाँ कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है and your fraction becomes 5 upon 6. Here you will write 5 upon 6 like this. 3 is added to numerator, 3 is added to denominator, your fraction becomes 5 upon 6. Now after this you will solve like 6 will multiply by x plus 3 and 5 will multiply by y plus 3. Same. And you will have equation number 2. If you solve, you will have equation number 2. Then solve equation 1 and 2 by substitution method. You know how to solve. Since we have solved so many questions of substitution method, if you know equation number 1 and equation number 2, then solve them by substitution method. जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे यू विल गेट एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई मिल जाएगा. देन लास्ट लाइन यू विल राइट देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, सपोज एक्स आपका 7 है, यू विल राइट 7 अपॉन, अगर आपका वाई का वैल्यू 9 है यू विल राइट 9. 7 अपॉन 9 विल बी योर आंसर. सॉल्व इट योरसेल्फ, कंप्लीट इट. सिमिलरली, और याद रखना आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दिस क्वेश्चन विल रिपीट 2 or 3 टाइम्स अगेन. आगे फिर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना आपने. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले को, फ्रैक्शन वाले को कैसे सॉल्व करते हैं. और सिमिलरली इस तरह एज वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया भी है, अभी भी कर रहे हैं, और नेक्स्ट भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. सो काइंडली फोकस योरसेल्फ एट दीज क्वेश्चंस. इस तरह के क्वेश्चनों पर आपने थोड़ा फोकस करना है. लुक एट क्वेश्चन, व्हाट डज इट से? 5 years hence means after. 5 years after, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Here we have 2 persons, Jacob and his son. They are 2 persons. 5 years ago means before. Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? जब इस तरह क्वेश्चन होंगे, एज वाले क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उनके प्रेजेंट एज को लेट करते हैं. Let the present age of Jacob is equal to x here
and the present age of his son is y years. Look at this. 5 years hence. 5 years hence means after. 5 years after. Jacob's age. ऑलवेज जब भी आफ्टर की बात करते हैं हम लोग हेंस की बात करते हैं, प्रेजेंट एज में वो वाली एज ऐड होती है। हेंस के लिए प्रेजेंट एज में ये वाली एज ऐड होगी x+5 और हिज सन उसकी एज कितनी होगी, उसके सन की एज y+5। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गो टू द क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन से? क्वेश्चन कहता है 5 years hence the age of Jacob, ये एज ऑफ जैकब की एज है ना, इज 3 times, 3 times मीन्स मल्टीप्लाई 3, किसकी? दैट ऑफ हिज सन, उसका सन का एज ही है। लुक एट हियर, जैकब्स एज विल बी 3 times हिज सन्स एज। नाउ सॉल्व इट, यू नो हाउ टू सॉल्व। x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 5 जा 15। इस तरह आपकी क्वेश्चन नंबर 1 बनेगी। और नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे आप लोग? नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। 5 years ago, एगो मीन्स बिफोर। आपके यहां पर क्या आएगा फिर? हियर यू विल राइट 5 years ago, यहाँ x+5 की जगह क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि एगो है ना। यहां पर क्या आएगा? y-5। जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन्स। जब आप करेंगे सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, यहां पर आएगा x-5 इज इक्वल टू, ये 3 times था, अब कितना टाइम्स है? 7 times। यू विल राइट इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट y-5। लेट मी रिपीट अगेन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेयर यू विल हैव x-5 इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट y-5। उसको सॉल्व करो, इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, you will get x and y. You will get x and y means you will get the present age of Jacob and present age of his son. एक रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो में कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखते जाएंगे और सुनते जाएंगे। ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड वेट। आपने सिर्फ एक बार देखना है, इसको कॉपी मत करो। सेकेंड टाइम आप वीडियो को रिपीट करो, फिर आप इसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ। इट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.3। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का था आपका। नाउ कम टू द एलिमिनेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेम वही है, पिछला वाला हमारे पास किससे था? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नाउ इट इज एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मीन्स सेम क्वेश्चन को आपने एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है, बट वी शैल सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड ओनली। इसको आप यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव ओनली वन मेथड, इधर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। या तो आपको इस मेथड से करना होगा या इस मेथड से करना होगा। दिस मेथड वी हैव यूज्ड इन प्रीवियस एक्सरसाइज, दैट इज 3.3 में हमने इसको यूज किया है, इसलिए आप इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे। यू विल यूज ओनली एलिमिनेशन मेथड। सो व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? Here you have 4 questions. I am solving the first part. Elimination. What do you mean by elimination? Elimination means आपने किसी एक वेरिएबल को, या तो अपने x वेरिएबल को या अपने y वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना मतलब यहाँ से हटा देना इसको। या तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा या आप x एलिमिनेट करेंगे। सो हाउ डू वी एलिमिनेट? लुक एट इट। इफ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट x, अगर आपने एलिमिनेट करना है x को, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दीज टू शुड बी इक्वल। यहाँ कितना है? 2, यहाँ 1 है, तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दे बोथ विल इक्वल। अगर आपने x को एलिमिनेट करना है, अगर आपने y को एलिमिनेट करना है, इट इज मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज मल्टीप्लाई बाय 1 है, ओनली 1 है ना। तो आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना? 3 से, तब तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जिस भी वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है, उसके साथ वाले नंबर को आपने इक्वल करना है। हियर इट इज 2, 1, 2 एंड 1 है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मतलब आपने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 2, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करो 10। इक्वेशन नंबर 3।
फिर से बता रहा हूँ, जिसको भी आपने इक्वल करना है उसको एलिमिनेट करना है। इसको आपने अगर एलिमिनेट करना है या इसको एलिमिनेट करना है, उन दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए। ये 2 था, ये 1 था, इन दोनों को इक्वल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2। ये आगे मल्टीप्लाई करने। नाउ लुक एट हियर, दोनों इक्वल है, 2x इक्वल है इन विच इक्वेशन 2 and 3। इनको सब्ट्रैक्ट करो। नाउ सब्ट्रैक्ट 3 from 2। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 2 को लिखो, फिर आप इक्वेशन नंबर 3 को लिखो। लिखा, देन subtract means you have to change the sign. It is plus sign, plus will become minus, plus will become minus, plus will become minus. Plus 2x minus 2x cancel, 3 minus 2 minus 3 minus 2 minus 5y is equal to 10 minus का है 4 plus का है 10 minus 4 minus 6। Look at here, now x is eliminated here, x खत्म हो गया यहाँ से, ये इसको होता है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर you have only y is equal to, take this to the right hand side, minus 6 upon minus 5, minus cancel, 6 upon 5, y is your 6 upon 5, substitute y is equal to 6 upon 5, it is 5, 6 upon 5 in any one of the equation, चाहे आप इसमें रखो इसका वैल्यू, चाहे इसमें रखो आप, since it is smaller, easy हम लोग y is equal to 6 upon 5 इसमें इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसका वैल्यू रख रहे हैं, x as it is plus as it is y means 6 upon 5 is equal to 5. Now solve it. X is equal to 5, take this to the right hand side, sign will change. X is equal to LCM 5 5 is 25 minus 6 is equal to 19 upon 5. Hence your x is equal to 19 upon 5 and y is your 6 upon 5. इट इज योर एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में फिर से बता रहा हूँ, या तो आप x को एलिमिनेट करिए या आप y को एलिमिनेट करिए। यहाँ हमने किसको एलिमिनेट कर दिया, x को। x एलिमिनेट मीन्स यहाँ से हटा दिया, रिमूव्ड, लुप्त करना जिसको हम लोग बोलते हैं। सिर्फ बच गया कौन सा, y। फिर अगर आपका y का वैल्यू आता है, y का वैल्यू को आप सब्सटीट्यूट करो किसी भी इक्वेशन में। यू कैन सब्सटीट्यूट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, इधर इन 1 और 2। इसमें जो आपको इजी लगे उसमें आपने इसका वैल्यू पुट करना है। हमको इजी लगा इक्वेशन नंबर 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। वी गॉट x and y. One more question I am solving here. How many questions are there? Here are 1 2 3 4 parts. I am solving 3 parts here. मैं यहाँ पे 3 सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट ये किया मैंने। Now come to the second one, this one. Look at it. Equation number 1, equation number 2. Again, you have to eliminate either x or y. अगर आपने इसको x को एलिमिनेट करना है, here it is 2, it is 3. तो इस केस में आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओनली देन दे विल बी इक्वल। इन दोनों कैल्शियम, ऊपर वाले को 2 से करो मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 3 से। इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ध्यान रखना, सबको करना मल्टीप्लाई 2 से। 2 3 जा x, 2 से 2 4 जा 8y, 2 से 20। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना था हमने, 3 से। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इक्वेशन नंबर 4। नाउ लुक एट हेयर, x इक्वल हो गया ना 6 6। हेयर इट वॉज नॉट, यहाँ पर इक्वल नहीं थे, हमने यहाँ इसको इक्वल कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग 2 and 3। अब जो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट, इसको लिखो फिर इसको लिखो। यू नो इन द सब्ट्रैक्शन वी चेंज द साइन। 6x प्लस x का 6x प्लस का 6x माइनस का कैंसिल, 8 प्लस का है 6 भी प्लस का है 14 बाय 20 माइनस 6 14
y is equal to 14 upon 14 is equal to 1. Look at here. Which variable is eliminated here? किसको खत्म किया हमने, हटा दिया यहाँ से x. You get the value of y. Now put this y is equal to 1 in any one of the equation. y is equal to 1 आपने किसी में भी रखना, आप इसमें रख दो, चाहे y का वैल्यू चाहे इसमें रख दो. इसमें हमारे पास इजियर कौन सी लग रही है, सेकंड वाली. हम लोग इसमें पुट करेंगे 2 as it is, 2x as it is minus 2y. In place of y we are writing here 1 is equal to 2. Now solve it. It is 2x minus 2 1 2 is equal to 2. Take this to the right hand side. Sign change. 2 plus 2 4. X is equal to 4 upon 2. Cancel 2. Your x is 2 and y is your 1. Similarly, I am solving third part. थोड़ा सा ये आपको फ्रैक्शन वाला लग रहा है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन अपॉन वाले में. अगेन इफ यू वांट टू एलिमिनेट x, अगर आपने x एलिमिनेट करना तो कैसे करेंगे इसको एलिमिनेट. अगर मैं इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओनली x. लुक एट इट इज x. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्या कहा हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2. अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 कैंसिल, x बचेगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो उसको, 2 2 जा 4y/3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो -2. इक्वेशन नंबर 3. अब ये दोनों इक्वल है, कौन सी, इक्वेशन 2 और 3 इक्वल है, इनको सब्ट्रैक्ट करो. पहले इसको लिखो x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 और x प्लस 4/3y इज इक्वल टू -2. सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इन सब्ट्रैक्ट बी चेंज द साइन. प्लस x माइनस x कैंसिल, इट इज माइनस ऑल्सो माइनस. ये 1/3 है, ये और 4/3 है. अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 4 5/3. सिंस इट इज माइनस देन इट इज -5/3. y इज इक्वल टू 3 प्लस का है, 2 भी प्लस का है, 3 + 2 इज इक्वल टू 5. नाउ इट y इज इक्वल टू 5. टेक दिस टू द राइट हैंड साइड, उधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मीन्स 5/3 का 3/5 हो जाएगा. माइनस यहाँ के बजाय आप यहाँ लिख 5 कैंसल्स, y इज इक्वल टू -3. लो जी, यहाँ पर हमने कौन सा एलिमिनेट कर दिया, x को एलिमिनेट कर दिया, y इज इक्वल टू -3. सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन एनी वन ऑफ द इक्वेशन. आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं. आप इसको, आप चाहे इसमें रखो चाहे आप इसमें रखो. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. सिंस इट इज इजियर सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2. y is equal to -3 in equation number 2. x minus 3/3 is equal to 3. Cancel. Minus plus 1. x plus 1 is equal to 3. इसकी साइड चेंज करो, आपके पास ये आएगा x का वैल्यू. Hence x is equal to 2 and y is equal to -3. ये आपका सॉल्यूशन है. और इसमें से हाउ मेनी क्वेश्चन आई हैव सॉल्व 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4. 4 में से हमने कितने किए, 3. यू हैव टू सॉल्व ओनली दिस. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देख लेना जरा आपने. व्हाट इज हियर, इन दोनों को इधर लेना आपने. इक्वेशन नंबर 1 तो एज इट इज. इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा, 9x, इसको इधर लाएंगे तो -2y -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. 9x -2y -7 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को आपने लेफ्ट हैंड साइड में लाना है. इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन जाएगी. अगर आपने इन दोनों को इक्वल करना है, लुक एट हियर, सेम ऐसे ही इसको 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 से कितना होगा, 9. इक्वल हो जाएंगे. ओनली इक्वेशन नंबर 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, बाकी आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है. सेम. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.